آج تک کسی سے ڈکٹیشن نہیں لی، کبھی کسی ادارے کا دباؤ برداشت نہیں کیا۔ مجھے کوئی نہیں بتانا چاہتا اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی بتائے کہ فیصلہ کیسے لکھیں۔ کسی بھی غیر جمہوری سیٹ اپ کو قبول نہیں کریں گے، عہدہ چھوڑ دیں گے۔ چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا عدالتوں کے حوالے سے انتشار نہ پھیلائیں۔ سپریم کورٹ سمیت تمام ججز انتہائی تندہی کے ساتھ قانون کی پاسداری کر رہے ہیں۔ اینٹی ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے۔ میں پہلے بھی چھوڑا، میں نے کسی دباؤ نہیں لیا کسی ادارے کا، نہ میں نے کبھی کسی ادارے کی بات سنی۔ میرے کو کوئی نہیں بتاتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں، میرے کو کوئی گائیڈ نہیں کرتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں۔ ہاں، کسی کی ضرورت نہیں میرے کو کچھ کہنے کی آج تک، کسی نے میرے کام میں انٹرفیئر نہیں کیا۔ میں نے کسی کے ڈکٹیشن نہ تو میں نے آج تک سنی، نہ دیکھی، نہ سمجھی، نہ کوئی میں نے ایسا اثرات دیے اپنے۔ علی احمد کرد صاحب، آپ عدالتوں کے فیصلے پڑھیں، آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہو ہمیں روکنے کی۔ ہماری عدالت جو فیصلہ کرنا چاہتی ہے فری ہے۔ بتا دیں کس کی ڈکٹیشن کے اوپر کون سا فیصلہ ہوا آج تک۔ غلط فہمیاں پیدا نہیں کریں لوگوں کے اندر، لوگوں کو غلط باتیں نہیں بتائیں، انتشار نہیں پھیلائیں، اداروں کے اوپر سے بھروسہ نہیں اٹھوائیں لوگوں کا۔ قانون کی حکمرانی ہے، انسانوں کی حکمرانی نہیں ہے۔ ڈیموکریسی کی فیور کرتے رہیں گے، اسی کا پرچار کرتے رہیں گے، اسی کو نافذ کرتے رہیں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کہتے ہیں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے عدلیہ کے ساتھ ساتھ ریاست کے دیگر اداروں کو بھی اپنا اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ لاہور میں تقریب سے خطاب میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے کہا کہ ریاست کے ایک ادارے کی حیثیت سے غلطیوں سے انکار نہیں کر سکتے۔ کئی عدالتی فیصلے ماضی کا حصہ ہیں، ان فیصلوں کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ احمد کرد، yes, as a judicial organ of the state, he can't refuse to accept our mistakes. We have changed the course of history of this country. The authoritarian rules, half of the life of Pakistan's existence is based on authoritarian rules. Regressive governments have destroyed fundamental rights and suppressed freedoms. But this struggle cannot be taken up by the judiciary on its own. Other players are equally important. اس سے پہلے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر علی احمد کرد نے کہا اب ملک میں شخصی حکمرانی نہیں چلے گی، عوام کو ان کے حقوق دینے ہوں گے۔ لاہور میں تقریب کے دوران جذباتی تقریر کرتے ہوئے علی احمد کرد کا کہنا تھا ایک شخص 22 کروڑ عوام پر حکمرانی کر رہا ہے، اب ایسا نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن عدلیہ میں بھی واضح تقسیم نظر آتی ہے، عوام کو انصاف کی فراہمی میں تاخیر ہوتی ہے، سوچنا ہوگا کہ ہم کیوں اس حالت تک پہنچے۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے خلاف کارروائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست میں رانا شمیم کو نااہل قرار دے کر تمام مراد واپس لینے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا ہے کہ رانا شمیم نے بطور جج لیے گئے حلف کی خلاف ورزی کی، وزارت داخلہ کو ان کے خلاف کارروائی کا حکم دیا جائے۔ موجودہ حکومت کٹ پتلی حکومت ہے، یہ عوامی نمائندے نہیں۔ عمران خان عوام کا دشمن اور آمروں کا ایجنٹ ہے۔ پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کی تبدیلی سرکار پر لفظی گولہ باری، وزیر اعظم عمران خان کو ملک پر عذاب قرار دے دیا۔ کہتے ہیں عمران خان کسی کا مہرہ ہے جسے ملک پر مسلط کیا گیا، لانے والے توبہ کریں۔ پشاور میں مہنگائی کے خلاف ریلی سے خطاب میں امیر جے یو آئی نے کہا غیر آئینی ہتھ کنڈوں کا ہر سطح پر بھرپور جواب دیں گے، ناجائز حکومت کو سمندر میں پھینک دیں گے۔
इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर जरूरी अंसर है, ये किसी का कठपुतली है, ये अवाम का नुमाइंदा नहीं है। ये आमिरों के एजेंट हो सकते हैं, ये अवाम के एजेंट नहीं हो सकते। इन 3 सालों में 2 तरह की कानून साजियां की हैं, मगरबी मालियाती इदारों के गिरवी बना दिया। अब हमने तुम्हारे गिरबान में हाथ डाल दिया है। कर्जे कितने इस कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए, क्या हमारी अगली नस्लें इन कर्जों को अदा करने के काबिल होंगे या नहीं? लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि इस नाजायज और नापाक हुकूमत को समंदर बुर्द न कर देंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने पेशावर में पीडीएम रैली को नाकाम करार दे दिया है। कहते हैं कि पीडीएम की रैली में लोग नहीं आए, उन्हें अवाम पहले ही कई बार मुस्तरद कर चुके हैं। 11 जमातें मिलकर भी अवाम को जमा ना कर सकी, अब पीडीएम वाले कोई नया बहाना तलाश करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है नून और शीन लीग का बयानिया एक दूसरे से मुतसादिम, चचा और भतीजी में खुली जंग जारी है। हमजा शहबाज पहले अपनी और अपने वालिद की मनी लॉन्ड्रिंग का हिसाब दें। एक बयान में हसन खावर ने कहा, शरीफ खानदान की नाम निहाद शराफत से कौम बखूबी आगाह है। शरीफ खानदान पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार है। शहबाज शरीफ शर्मनाक लीग के सरबराह हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बाद सेनेट में भी शिकस्त के बाद उन्हें सियासत छोड़ देनी चाहिए। हसन खावर ने मजीद कहा, नाअहल और नाकाम अपोजिशन हर महाज पर पसपा हो चुकी, वायरस ज़दा अपोजिशन आइंदा भी रोती रहेगी। पीटीआई सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज चौधरी की लाहौर में टीएलपी सरबराह हाफिज साद रिजवी से मुलाकात हुई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अलामा साद रिजवी को रिहाई पर मुबारकबाद देने आया हूँ। सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया, इमरान खान की इजाज़त के बगैर कभी किसी से नहीं मिलता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज चौधरी की लाहौर में टीएलपी सरबराह हाफिज साद रिजवी से मुलाकात हुई। मीडिया से गुफ्तगू भी की और कहा है कि अलामा साद रिजवी को रिहाई पर मुबारकबाद देने आया हूँ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सेहत के हवाले से आला सतह के इजलास में सूबे के अवाम को हेल्थ केयर की मियारी सहूलतें फराहम करने के प्रोग्राम पर जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने हेल्थ केयर की मियारी सहूलतों की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने की हिदायत कर दी। इजलास में सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, चेयरमैन मनसूबाबंदी और तरक्यात, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने सूबे में जारी हेल्थ प्रोजेक्ट्स के बारे में ब्रीफिंग दी। उस्मान बुज़दार ने कहा, साबिक दौर में पसमानदा इलाके सेहत के लिहाज से भी पसमानदा रखे गए। हमारी हुकूमत ने मियारी हेल्थ केयर के लिए यकसां पॉलिसी अपनाई है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने साजिद अहमद भट्टी को बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है, साजिद अहमद भट्टी कमेटी के मामलात बाहमी मुशावरत से चलाएंगे। मुस्लिम लीग काफ पंजाब असेंबली में कानून साजी के अमल में पेश है। साजिद अहमद भट्टी सुलझे हुए पार्लियामेंटेरियन है। एमएनए चौधरी सालिक हुसैन ने साजिद अहमद खान भट्टी को चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बात करें गैस लोड शेडिंग की तो सर्दियां शुरू होते ही गैस की लोड शेडिंग मामूल बन गई। घंटों गैस गायब रहने से महंगाई की सताई अवाम की मुश्किलात में और भी इजाफा हो गया। सबने तब्दीली सरकार से गैस की लोड शेडिंग फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। सर्दी आई, गैस की लोड शेडिंग साथ लेकर आई। हुकूमती दावों की कलई खुल गई। महंगाई और गैस की लोड शेडिंग की सताई लाहौर की आवाम तब्दीली से बेजार। कहते हैं गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। गर्मियों में भी बारिश हो जाए तो गैस नहीं आती, तो अब सर्दियाँ बिल्कुल ही नहीं आती। तो हम तो सिलेंडर इतना महंगा है वो भी नहीं भरा सकते, क्या करें। बच्चे ऐसे ही स्कूल जाते हैं। गैस हमारे मोहल्ले में नहीं आती है, इसलिए हमें चाहिए, हमारी हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए गैस मुहैया करे। सारी दिहाड़ी बच्चे स्कूल चले जाने भूखे, तो बिल्कुल गैस नहीं आ रही। फैसलाबाद में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। खाना पकाना मुश्किल हो गया। शहरी होटलों से खाना खाने पर मजबूर। खवातीन बरहम कहती हैं सर्दियों में सुई गैस आती नहीं, बिल डबल हो जाते हैं। जब खाना बनाना हो तो गैस बंद होती है, सुबह नाश्ता करना हो, बच्चों ने स्कूल जाना है तो गैस बंद है, जब दोपहर को देखो तो गैस बंद है।
तो बिल जो है वो डबल आ जाता है। ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਕੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੀਦਾ ਫਿਰ ਤਨੂਰਾਂ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਵਾ ਇੰਜ ਕਰੋ ਖਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। हाफिजाबाद के नवाही गांव वनीके तारड़ में भी गैस बंदिश से लोगों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से गैस की लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस का प्रेशर कम। हैदराबाद में सुई गैस की लोड शेडिंग के बाइस घर में खाना बनाना मुमकिन हो गया। शहरी कहते हैं न रोटी पकती है और न ही नहाने के लिए गर्म पानी मिलता है। वज़ीर इत्तलाआत सिंध सईद गनी विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं कभी बिजली नहीं आती तो कभी गैस चली जाती है। तब्दीली सरकार शायद मुल्क को पत्थर के दौर में ले जाना चाहती है। हुकूमती वज़रा के बयानात को मुज़हिका खेज करार दे दिया। कहा वज़रा कहते हैं कराची में सर्दी ज़्यादा नहीं और पत्थर पर आग जलाकर पानी गर्म करें। गैस पाइपलाइन को डाले हुए 2 साल हो गए लेकिन मसला अभी भी जूं का तूं है। वफाकी वज़ीर तवानाई का मुल्क भर में गैस फराहमी का शेड्यूल जारी करने का फैसला। कराची में गैस की बंदिश ने लाइन्स एरिया के मकीनों को पुराने ज़माने में धकेल दिया। कहीं फलों की पेटियां चूल्हों का ईंधन बनने लगी तो कहीं 3 माह से गैस बंदिश से तंग आकर स्ट्रीट किचन सजा लिए गए। आसिम अशरफ की रिपोर्ट। सुबह के नाश्ते की तैयारी या दोपहर का खाना पकाना, लाइन्स एरिया में सुई गैस ने कसम खा ली यहाँ एक लम्हे भी नहीं आना। सर्दी तो शुरू अब हुई है लेकिन सर्दी से पहले 3 महीने पहले से गैस का नाम निशान नहीं है। टाइम भी नहीं आ रही है, 2 रोटी नहीं डाल सकते तब एक ऊपर लकड़ी लगा दो रोटी पका लो वरना नहीं। 3 माह से मुसलसल गैस की अदम फरामी का अजाब झेलने वाली खवातीन चूल्हे गलियों में ले आईं। किसी ने गली को किचन बना लिया तो किसी ने लकड़ी की पेटियों का ढेर घर में लगा लिया। 3 महीने हो गए इस तरह से एक ट्रेजा गैस नहीं है किसी के घर में। मकीनों का शिकवा है तरक्की के दौर में गैस से महरूम इलाकों में भारी भरकम बिल भेज दिए जाते हैं। कैमरामैन नौमान खान के साथ आसिम अशरफ, नियो न्यूज़, कराची। लाहौर के इलाके समनाबाद में तशद्दुद का शिकार होने वाली 7 साला मिसबा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बच्चों के साथ घुल मिल गए। गैरों के साथ साथ अपनों की बेएतनाई का शिकार बनने वाली मिसबा को वालिदैन ने काम के लिए भेजा तो मालिकन ने जुल्म सितम के पहाड़ ढा दिए। मिसबा की कहानी जानने के लिए रूबा अरूज की रिपोर्ट देखें। मुझे मारती थी इस्त्री के तारों से और इस्त्री लगाती थी, कहती थी वाश में नहीं धोती और कमरा क्यों नहीं कर। 7 साला मिसबा की कहानी रोजाना घरेलू तशद्दुद का शिकार होने वाले हजारों बच्चों की कहानी में से एक है जो अरबाब इख्तियार तक नहीं पहुंच पाती। बाजी के सामने नहीं कहते थे। अच्छा। बाजी सामने ही होते थे, बाजी कहीं नहीं जाती थी जब मैं फोन पे बात होती।